Today also, in today's generation, also small children are like, how learn how to the count or how to do calculations from abacus only, but in a small manner. I think so. Good. Good, Ankita. Good. Yes, study like that. Hello. Yes, Excuse me, sir. yes. Excuse me, sir. बोलिए. I have a doubt. You accepted the other student's definition about computers being about it being Your voice is electronic not device that clear. takes an Your input and voice. gives an output. Hello. Okay. Hello. Yes. Yes, Can you please. hear me? Yes, please. Yes. The other student said that computers are electronic devices that take an input and then give us an output after doing some calculations, right? Yes. Yes. Does it have to be an electronic device? Because in the 1960s and 70s, they weren't using electronic circuits for the machines. They were using analog parts and vacuum tubes and such. So can they even be considered electronic devices at that point? Yes. See, the computer can be divided into many parts, many types basically, based on performance, based on purpose, and based on means basically that is depends on the generation to generation and time to time, right? Hello. Yes, so electronic is not necessary for the definition of computer, No, the no, electronic part of the not definition. Okay. necessary, because time to time we always develops ourselves as well as the computer system also, right? So Yes. it's Got may it. changes Okay. during Okay. the Got period it. of time. Thanks. It, it is okay. Okay now. Okay. Thanks. What's your name? Substros. Sarthak. Okay. So Ankita has explained about abacus. Abacus is what? Abacus is the basic calculator. Before invention of calculators, we have used uh, instruments like this. You can see on the screen for the basic calculations, like mathematical calculations, or you can see if you wanted to do something, we wanted to add some numbers, we can use the particular rings, whatever you are given in your book. You can see in a green color that ring can be calculated once by one, and the total count is made once, and that is known as abacus computer. The next one is, first computer was the abacus computer. The next part we can say Napier's bone computer. It was invented by invented by Napier's side. That's why it was known as Napier's bone computer. And the purpose of this computer was also to make mathematical calculations, and it was developed for the basically multiplication purpose. Previously, the abacus was for the addition purpose, and that was after that we need the. Oh, how can I teach? So after abacus, we developed Napier bones. Then slide rule was there. Slide rules that was also that was developed after Napier bones computer, and this was also for the calculations. Means basically I am just going through and the basic things you need to study your own, and then you can ask question. Okay. Then Pascal computers comes up, Pascal calculator. After Pascal calculators, we comes up in the real world of the calculating devices. After after Pascal computer, we really comes up into the calculation devices, because Pascal was also the mathematician who developed as per the mathematics engine. Then after Pascal's, we knew the Levinas multiplication and dividing machine, which was only developed for dividing and multiplication, division and multiplication system. Then different systems comes up in the picture one by one, and the the people get benefited from that. Just you have to study your own these topics. That will be better, because wasting time is not good.
We have limited number of classes. Actual syllabus starts from computer generation. Computer generation, you know, computer is what, how the computer comes up. Computer comes up with the, as per the requirements from one by one. Like you already studied about the computers, means abacus computer come first, and then Napier bones comes, then one by one many computers comes up, and finally we got a calculator. That is the calculating devices. They start the first and foremost computer was the calculator. Now comes up in the computer generation system. Time to time, as we know, time to time we need to change the things and develop the things. Similarly, in computer system, time to time we develop the computers, and that development of the computer beyond the time, means as per the time period, is known as computer generation. And the first computer generation was developed in 1940, and it worked till 1956, right? Okay, 1 second, please. Yes, Abhimanyu, you wanted to ask something? Who is SK Media and SK Creation? No issue. So first generation's computer comes up in 1940 to 80, 40 to 56. And the second generation, first generation computer, the computers was working with, yes, Anshu Bharadwaj, you wanted to ask something? देखिए, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मैसेज कम करेंगे तो डिस्ट्रैक्शन कम होगी. आप लोगों को जो पूछना है वो पूछ सकते हैं, मेरे से बोल भी सकते हैं आप लोग. Okay, Ansu, you need PDF, right? How many of you have books or not? Hello? Everybody has books? So the books are available on online portal. Yes, everybody can download from online portal, LMS portal, as well as egyankos.ignu.ac.in, right? The book is available on both the places. Those who have no login ID of LMS can download from egyankos.ignu.ac.in. Yes, sir. Okay. And those who has no login ID and password of LMS can raise your question to your concerned RC and headquarters so that you can get your credentials soon. Because everything is dependent on LMS portal. You have to submit your assignment on LMS portal. You can view, you can see each and every study material from your LMS portal. So everything is dependent on LMS portal. So first generation, I was on first generation computer system. The first generation computer system was developed in 1940, and it worked till 1956, and that was running on vacuum tube. So it was very slow and very it was taking so many spaces to run up, and there are so many limitations of the system also. There are so many limitations of operating system also. There are so many limitations of works also. So to remove these types of limitations, we started to develop and we started to increase some functionalities and some system features, and then the second generation comes up. And the second generation, we used transistor system, and that was developed in 1956, and goes to the 1963. From 1956 to 1963, he works for the second generation computer. It was faster than the first generation computer or vacuum tube system. It was good for
performance. It was good in performance as well as good in procession. It was taking some little spaces and all. It was running quickly. It has more features than the first generation system. Then after that, we need some more progressing system, something extra than the previous one. So we need to generate a new system, and that comes up the third generation system. And the third generation system was developed in 1964, and it works till 1971. In this system, we used IC. You know IC? What is IC? Integrated circuit. We used integrated circuit, and that was all because of using the integrated circuit, we found it was more powerful than previous one. Yani ki it was more powerful than third generation system, second generation system, and was working faster. There are so many functionalities we can use, and it was beneficial for the current generation. Then again, क्वेश्चन है हाँ बोलिए, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट था ये किस चीज से बना हुआ था? इंटीग्रेटेड सर्किट, अब देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी आप जानते हैं, चिप आप जानते हैं? यस सर। हाँ यस सर चिप। क्या होता है आईसी और चिप? सर जो चिप होती है वो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे लगती है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ वो किस चीज से बनी होती है? ये सर मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए गुड, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चा, लेकिन वी आर वर्किंग इन सॉफ्टवेयर सिस्टम नॉट द हार्डवेयर सिस्टम। यस आई कैन एक्सप्लेन द पार्ट, आप जो पूछा मैं बता देता हूँ, लेकिन वी आर वर्किंग द सॉफ्टवेयर सिस्टम नॉट द हार्डवेयर एंड हार्डवेयर प्रोग्रामिंग सिस्टम, राइट? तो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर क्रिएशंस इन्वेंशंस जो पढ़ते हैं ना, उसके अंदर ये पढ़ते हैं एक एक चीज की किस किस चीज से बनी है। बट द थिंग इज बट कि आपने पूछा है क्वेश्चन कि चिप किस चीज से बनी है या आईसी किस चीज से बनी है। तो आईसी इज व्हाट? इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे पहले ये जानो, ट्रांजिस्टर जो बना था, ट्रांजिस्टर किस लिए बना था? कोई बताएगा? व्हाट इज ट्रांजिस्टर एंड व्हाई इट वाज डेवलप्ड? ट्रांजिस्टर क्यों बना था? यस बोलिए। सर डायोड्स और डायोड्स और मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। यस गुड, डायोड्स एंड मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। ये तो बहुत ही स्मार्ट आंसर था ये अंकिता, दैट्स गुड। कोई भी देखो, अब इंटीग्रेटेड सर्किट हो या ट्रांजिस्टर हो या आपका चिप हो, सब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या करते हैं, उसको फंक्शनलिटी में लाने के लिए काम करते हैं। तो ऑब्वियसली इसमें डायोड्स यूज होते हैं, राइट? तो डायोड्स क्या होते हैं, अब देखो इस पे जैसे ही अब क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो सिंपल अभी ये जानो कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एक रनिंग पिक्चर में लाने के लिए जो डिवाइस होता है वही होता है हमारा चिप और आईसी। लेकिन we have developed it using diodes and many things more. I'll not go beyond that one. उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा because that is a huge topic. और we are learning about the basic things. That's why I'm just going to pass this one. तो सबसे पहले we learned about the third generation computer system. The third generation computer was developed in 1964 and it goes up to 1971. And it was in this system we had used IC, smooth and fast running of the system. And then we found some difficulties to work on that, and we need to develop something more, and we developed the fourth generation computer in 1971, and it's going on right now. And it was in the fourth generation system we have used चिप, बिकॉज आप लोगों ने सुना होगा पहले आज से 7-8 साल पहले की बात करोगे अगर आप लोगों ने
याद होगा। तो आप लोग सुनते होंगे कि मेरे मोबाइल का चिप उड़ गया है, मेरे मोबाइल का आईसी उड़ गया है, मेरे मोबाइल का पहले ट्रांजिस्टर उड़ गया है। मैंने सिस्टम में ट्रांजिस्टर होते थे, मोबाइल में आईसी से ही मोबाइल आया था। आईसी उड़ गया, फिर आईसी आप जाते थे चेंज करवाते थे। आपके टेलीविजन में आईसी उड़ जाता था, आप चेंज करवाते थे, 10 साल पहले की बात है। और आप उससे 1 सेकेंड। यस कृष्णा जी। हाँ कृष्णा जी, क्लास ले रहा हूँ मैं, 10 बजे निकलूंगा और 10:30 तक पहुंच जाऊंगा आपसे में। और कुछ क्लासेस ना आप लोगों को भी लेनी पड़ेगी, मैं देता हूँ शेड्यूल आज, ठीक है। हाँ कुछ कहना था कह दीजिए, मैंने अपना कह दिया। हाँ वही 8 से 10 क्लास है, मैं क्लास ले रहा हूँ ऑल इंडिया वाला, और उसके बाद फिर निकलूंगा यहाँ से, ठीक है। आप कहिए तो इधर से चले चलेंगे कोई। अच्छा नहीं ठीक है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं 10 बजे आपके पास पहुंच जाऊंगा उधर से, ठीक है, रेडी रहिएगा, ठीक। ओके यस बच्चे। सो जनरेशन, मुझे लगता है कि जनरेशन सिस्टम तो आप लोग पढ़ लेंगे। कोई डाउट है किसी को तो पूछिए। जनरेशन सिस्टम में आप लोग पढ़ेंगे और एक क्वेश्चन बनाएंगे। एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को, ये देखिए, after every topic we need check your progress, and in check your progress you can see 1 to 4 questions. See, there are 2 questions only. What is computer? What is a computer? Why is it known as data processing? Why is it known as data processing? So computer ka definitions you have already clear. And now why it is known as data processing? Because computer always works on data system. Computer always works on, 1 second, I'm taking your attendance. After attendance, I'll continue. First, I'm taking your attendance as a screen. I'm just taking your all attendance. Always come in the classes with valid identity, means valid name, not invalid name, okay? So that it will be better for me as well as you to take attendance for the future references, okay? बच्चे लोग समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes. I can comfortable with Hindi and English both, no issue. You whatever you will say, I'll go for that. Even if I'm also comfortable with Bangla, no issue. So, yes, Sir, yes, बच्चे बताइए. sir, I'm Alfina Mehman. I want one question. I have one question. I didn't understand. Your voice was Sir. not clear. Yes, Are you getting my voice? yes, please go ahead. सर एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो टेक्स्ट बुक में पीछे क्वेश्चंस दिए वो करने हैं या फिर कुछ और भी मटेरियल है? It will be better if you'll go through the 5-year question from IGNOU site. एंड कोर्स चेंज हुआ है कुछ या फिर सही अभी ऐसे? नहीं चेंज हुआ है बच्चे. तो हम लोग जो लास्ट 5 इयर्स के पेपर्स है वो लेंगे. हाँ, आप लोग कहाँ से जाएंगे वो भी मैं दिखा देता हूँ. जब इग्नू की साइट पे जाइए आप लोग, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे. इग्नू की साइट पे जाएंगे, फिर स्टूडेंट सपोर्ट के अंदर जाएंगे आप लोग. इग्नू की साइट के अंदर स्टूडेंट सपोर्ट है ये. इसके अंदर डाउनलोड्स के अंदर जाइए. डाउनलोड्स में क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको. जिस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, देखिए 2010 से अभी तक अवेलेबल है, राइट. यहाँ क्लिक करेंगे आप लोग. क्लिक करके अपने कोर्स कोड को टाइप कर दीजिए, जैसे BCS 11. या अगर ऐसे नहीं मिलता है तो कुछ नहीं करना है, आपको नीचे जाना है जहाँ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस लिखा होगा. इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, स्कूल ऑफ साइंसेस. देखो स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस है ना यहाँ पे. यस. ये BCA का है.
यहाँ पर जून 23 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करने के लिए मिल जाएगा 13/23 का टाइम दिया हुआ है, 22 में आपको मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे आप लोग और आप लोगों को बुक्स सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। सर 2023 का अभी तक क्या लॉन्च हुआ या अभी तक वो आया नहीं है? क्या चीज 2023 का? हाँ जी सर, क्वेश्चन पेपर्स या जो 23 भी का है भी सर। मिल जाएगा, सारे क्वेश्चन पेपर नहीं होंगे, मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करने पे आ गया ना, 22 का दिसंबर का, यहाँ पे क्लिक किया, आपका यही क्वेश्चन पेपर। 23 का भी है, मैंने देखा नहीं था सही से। सर वन क्वेश्चन इज देयर। वो हमारे टाइम टेबल में अभी तक वो जो लैब वाला सब्जेक्ट है ना, पीसी सॉफ्टवेयर लैब, उसका भी कुछ एग्जाम का भी नहीं है नोटिफिकेशन, एंड ये टाइम टेबल जो शेड्यूल है मीटिंग का उसमें भी नहीं है, तो वो सब्जेक्ट का किस तरह है? अभी ऑनलाइन मोड में हम ले रहे हैं क्लासेस आपके थ्योरी का, राइट? यस। प्रैक्टिकल के लिए जैसे गाइडलाइन आता है आपके एलएमएस पोर्टल पे आ जाएगा, या आपको जैसे अभी इंफॉर्मेशन आया है वैसे ही उसका भी इंफॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चे? सर ये सारे आरसी सेंटर के लिए एक ही क्लास होगा या हर आरसी सेंटर का अलग अलग होगा? जैसे मेरा भुवनेश्वर है तो भुवनेश्वर के लिए भी यही है ना आप? जी, पूरे ऑल इंडिया का यही चल रहा है ओएल का। ओएल में बच्चे कम होते हैं, ओएल में, ओडीएल में ज्यादा बच्चे होते हैं, तो ओएल का एक साथ रखा जाता है, ठीक है? अच्छा सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी, बताइए सर सारी बुक्स ऑनलाइन ही मिलेंगी या फिर कुछ प्रिंटेड भी मिलेंगी हमें? सर आपने ओएल में एडमिशन लिया है तो ऑनलाइन मोड ही रहेगा ना उसका। आप अपने एलएमएस पोर्टल पे जाइए, वहां पे बुक्स अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, या आप चाहे तो आप eGyanKosh.ignou.ac.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके आप सर, थैंक अगर यू। हार्ड कॉपी में चाहते हैं तो आपने अपने कंसर्न आरसी में जा करके बात करें, ठीक है? आरसी आपको कुछ अमाउंट लेगा उस बुक का, जो भी अमाउंट होगा उसका फिक्स्ड, और आपको दे भी सकता है। ओके सर, थैंक यू। Excuse me, sir. सर इसके बाद ये अपने Sir, I have a doubt about the इंटीग्रेटेड सर्किट के assignments. बाद क्या पढ़ा? Sir, the एक एक करके पूछिए। हाँ बोलिए, असाइनमेंट्स के विषय में डाउट है आपको, राइट? हाँ yes, पूछिए। about the BCSL assignment, BCS lab का जो assignment था ना, 13 की बात उसमें सर जी पूछिए। हमें एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं बताया था कैसे सबमिट करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लिनक्स की कमांड्स करके करनी थी, तो वो एग्जैक्टली कैसे करना था सबमिट? स्क्रीनशॉट भेजनी थी उसकी असाइनमेंट में। एक काम करेंगे जैसे आप, लिनक्स कमांड्स में वो लाइनक्स की कमांड थी, लाइनक्स की कुछ कमांड्स हैं आपके चैप्टर में, पढ़ना है आपके बुक्स में। तो जैसे कमांड ls हो रहा है, राइट? ls कमांड आप लिखिए, कमांड करता क्या है वो लिखिए, वहां पर उसका डिफाइन करिए, और आप उसका स्क्रीनशॉट वहां पर पेस्ट कर दीजिए कि ls चलाने पे ये रिजल्ट आया। दैट्स ऑल। जैसे थर्ड क्लास की बुक होती थी ना, लिखा होता था MS वर्ड, तो उसकी फोटो होती थी, फिर उसके नीचे लिखा होता था। एक एक करके बोलेंगे ना, सबका क्लियर कर लूंगा मैं। जी बोलिए। जी तो मैं लिनक्स ही यूज करता हूँ वैसे अपने कंप्यूटर पे, तो मेरा जो शेल है वो जो बैश होता है, वैसे ही मैं दूसरा शेल यूज करता हूँ, तो मेरा इंटरफेस थोड़ा अलग था, तो उसकी वजह से मेरे हाथ सटेंगे, क्योंकि मेरा इंटरफेस थोड़ा अलग था। आउटपुट सेम आएगा बट थोड़ा ज्यादा स्टाइलाइज्ड आएगा। कोई भी शेल यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और दूसरा आप अपना वहां पे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ओके, क्लियर? और सब एक चीज ध्यान रहे, जितने भी बच्चे हैं आज अभी 91 स्टूडेंट्स हैं, 92 स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना असाइनमेंट सिर्फ अपने एलएमएस पोर्टल पे ही डालेंगे, क्योंकि एलएमएस पोर्टल पे नहीं डालेंगे तो आपका मार्क्स अपडेट नहीं होगा, आपको परेशानी होगी। Everybody is requested to submit your assignment on LMS portal only. If you are submitting other than LMS portal, your marks will not be updated and you will get distract from your query as well as your education also.
सर आप अटेंडेंस लोग कैसे पास लगेगा? अटेंडेंस आपका जो रियल नेम है उस नेम से आइए, क्योंकि मैं उसका स्क्रीनशॉट लूंगा, दैट इज द अटेंडेंस। ठीक है, ओके सर। 2 बार मैं ले चुका हूँ, 1 बार और लूंगा एट द एंड ऑफ द क्लास। ओके सर मैं सर ये कह रहा था मैं जो सर चैट एनरोलमेंट नंबर के साथ नाम मैसेज करे हुए हैं, तो उससे नहीं होगा? हाँ सर, वो सब आपका क्योंकि ये सर सब इसमें कुछ नाम अलग है रिकॉर्डिंग में सर। चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्डिंग में चल रहा है गूगल इंटरप्राइजेज एडिशन के थ्रू, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, वो हमारा काम है। ठीक है, आप सर लोग मैसेजेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, मैंने असली नाम नहीं रखा गूगल पे। आप गूगल खुद हमें अटेंडेंस दे देगा कि कितने लोगों ने कैसे अटेंड किया था। ठीक है, ओके सर वो असाइनमेंट के बारे में पूछना था कि असाइनमेंट का कोई पर्टिकुलर डेट आया है या हम लोग को वेट जी करना पड़ेगा? डेट आ चुका है, 30 नवंबर डेट हो गया है, अभी 30 अक्टूबर था, बढ़ करके 30 नवंबर हो गया है। आप लोग सबमिट कर देंगे 30 नवंबर से पहले। ठीक है बच्चे। सर ठीक है सर। मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी इग्नू में लिया है, 10 डेट को एडमिशन करवाया था अक्टूबर 10, बट अभी तक उसका पोर्टल नहीं आया, तो असाइनमेंट कैसे सबमिट करें? असाइनमेंट सबमिट करने के लिए बच्चे मैंने अभी बताया, आप अपने एलएमएस पोर्टल पे लॉगिन करो। एग्जैक्टली एलएमएस पोर्टल ही नहीं आया, वो जो आता है ना मेल और फिर पोर्टल लॉगिन होता है, वो नहीं आया। कोई बात नहीं, तो इसके लिए आप उसका एडमिशन कंफर्मेशन आ गया है। हाँ, एडमिशन कंफर्मेशन के साथ ही एलएमएस पोर्टल का भी डिटेल्स आया होगा उसके पास, जो मेल आया है ना उसमें ये चेक सर करो। मेरे पास वो मेल में आया है, बट उसके पास नहीं आया, हमको 4 दिन बाद आ गया था, उसको 20-25 डेज हो गए, बट अभी तक नहीं। कोई बात नहीं, तो आप किस आरसी से हो बच्चे? आरसी अहमदाबाद। आरसी अहमदाबाद। आरसी अहमदाबाद में कांटेक्ट करिए अपने रीजनल डायरेक्टर से, या असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर वहां होंगे, वो लोग आपको तुरंत, हो सकता है उसके मेल एक्चुअली आईडी सर वहाँ विजिट कर भी आए थे, बोनाफाइड के लिए भी और ये इशू के लिए भी, तो सी टोल्ड कि हमारा कोई कंसल्ट नहीं है ऑनलाइन वालों के साथ, सीधे दिल्ली से आप कनेक्ट करो। ओके, कोई बात नहीं है, तो उसके लिए RSD एक ईमेल आईडी लिखो, RSD सर प्लीज आप चैट में डाल सकते हैं। RSD@ignu.ac.in, अब कुछ नहीं लिखना है, RSD @ignu.ac.in। इस पे आप मेल करिए कि मेरे पास नहीं आया है चीज, और मैं आपको और भी मेल आईडी कल दे दूंगा, अभी तो मेरे पास याद नहीं आ रहा है, आज क्लास ले लेता हूँ, कल की क्लास में और भी सारे मेल आईडी दे दूंगा, उस पर आप डायरेक्ट मेल करेंगे, आपके पास आ जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। उसको। एलएमएस पोर्टल पे असाइनमेंट के लिए अपडेट नहीं हुआ अभी तक, मुझे लगता है अपडेट की अपलोड के लिए नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, वो 30 अभी तारीख अपडेट नहीं टाइम होगा। है, 30 तारीख तक टाइम है, आप लोग अभी बना लीजिए, 10 तारीख तक वेट कर लीजिए। नहीं आएगा तो उसके लिए भी मैं आपको कंसर्न डिपार्टमेंट का नंबर और ये दे दूंगा, आप लोग वहां बात कर सकते हैं। ठीक है बच्चे। ओके सर मैं ये कह रहा था कि सर अभी आप पढ़ा लो, उसके बाद लास्ट में आधा घंटा आप क्वेश्चन सेशन रख लेना, जिसके जो भी क्वेश्चन हो वो लास्ट में पूछ लेगा। बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट के देखो, Yes, आज sir. से ये करना है हमें, फर्स्ट के 15 मिनट में 20 मिनट में बच्चे ज्वाइन करते हैं। ठीक है विशाल। यस सर। फर्स्ट के 20 मिनट में बच्चे 1 बाय 1 ज्वाइन करते हैं, तो फर्स्ट 20 मिनट में जितने क्वेश्चन पूछने हैं पूछ ले सब लोग, उसके बाद क्लास स्मूथली चले, Yes, ताकि sir, yes, सारे sir. कोर्स कंप्लीट हो जाए हमारे 9 क्लासेस के अंदर में। राइट। हेलो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर रेगुलर होगी क्या क्लासेस जी? आपको अरे भाई शेड्यूल नहीं मिला होगी है यार बच्चे? रेगुलर यार। 1 मिनट विशाल आप चुप रहिए। क्या सर? आपको शेड्यूल मिला है ना बच्चे? नहीं सर, मेल तो नहीं आया है। मेल नहीं आया तो शेड्यूल का लिंक आया होगा ना आपके पास, इंफॉर्मेशन आया तो शेड्यूल PDF फाइल देख लो, और जिसको दिक्कत हो वो भी मैं दिखा देता हूँ। rcdelhi3.ignu.ac.in पे जाएंगे आप लोग, यहाँ काउंसलिंग शेड्यूल है, दिख रहा है ना आप लोगों को? हेलो, RC दिल्ली 3 पे जाएंगे, हमारे स्टडी सेंटर, हम RC दिल्ली 3 से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर SC38039 है, यहाँ BCA OL है, इस पे क्लिक कीजिए, ये आप शेड्यूल देख सकते हैं। आज आपकी 2 क्लासेस हैं, एक 8 से 10 है
और एक 1 से 3 है। ठीक है, रेगुलर ठीक है। बेसिस पे इसलिए है क्योंकि दिसंबर में एग्जामिनेशन है, बहुत लेट हो चुका है। अगर डेली नहीं करेंगे तो कोर्स खत्म कहाँ से हो पाएगा, 4 ही सैटरडे संडे मिलने हैं, उसमें भी एक दिन दिवाली आ जाती है, तो 4 सैटरडे संडे में पॉसिबल नहीं था। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं कोर्स पे, ताकि कोर्स कवर अप करें। ये 2 क्वेश्चन आप लोग करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू बट इम्पोर्टेंट। एक्चुअली अटेंडेंस ये ऑनलाइन है, तो इसमें अटेंडेंस कंपलसरी है। सर आप कंटिन्यू करो सर। अगर अटेंडेंस लगानी है तो क्लास में बताओ। एक्सक्यूज मी, आप सर हो? मैं सर से बात करूँ, यहाँ आपसे पे बात टाइम करूँ? वेस्ट हो रहा है, जो क्वेश्चन पूछने में बाद में पूछने ना, बट आई ठीक है टोल्ड ना, आपको। सॉरी फॉर लास्ट क्वेश्चन, आई टोल्ड अरे ना। आज पहला दिन है, पूछने तो क्वेश्चन कल कर लेना, कल से कोई। अरे सर 15 तारीख का एग्जाम कंटिन्यू सर, स्टार्ट है, क्लास हाँ तो कंटिन्यू यूट्यूब पे अवेलेबल है वीडियो, 6 महीने क्या किया? ऑनलाइन मोड में क्लासेस का कुछ किसी को पता ही नहीं था। ये तो नहीं, गुड विशेस है गुजरात। देखो आपसे ज्यादा पता है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने आए हो, चुपचाप पढ़ो और चले जाओ। प्लीज 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 क्लास मत करो। आरती में जाओ, आरती में। इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रही थी। यहाँ पे फ्री नहीं होता, ठीक है, क्लास लेनी होती है, उसके बाद बहुत काम होता है। सर कंटिन्यू प्लीज। इट ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा कि ऑफलाइन, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। जिस मोड के लिए आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे उस मोड में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आप अपने एलएमएस पोर्टल को ध्यान से देखें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो पहले ही हमने डेफिनेशंस में देख लिया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। इट टेक्स इनपुट, it has some storage points, so it stores the instructions given by user and then do some processings and then produce the respective output. कंप्यूटर क्या करता है, पहले इनपुट लेता है, फिर स्टोरेज यूनिट में जाता है and then it produce the output based on the input and respective instructions for the processing. So it takes some first input, you can see input, then goes to the storage devices, and as per the storage and instruction, it can go to the control unit, do the arithmetical progressions, and then produce the output. This is the entire work of the system. Next part is what? In next part, there are so many operational unit. Operational unit means what? Means what are the unit which works for the operations. किसके लिए कौन कौन सा यूनिट ऑपरेशनल है जो काम करता है। तो सबसे पहले हम वी नोज अबाउट द ALU, एंड बिफोर ALU वी कैन लर्न अबाउट द CU. CU इज व्हाट? कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट इज द डिवाइस ऑफ द सिस्टम which is used to, and the task of control unit is to control the entire hardware devices of the system for make them the complete functional mode. It means it checks out the entire system and entire
devices of the system that they are in working mode or not. यानी कि CU क्या करता है, CU पूरे सिस्टम को चेक करता है, सिस्टम के सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को चेक करता है कि सारे हार्डवेयर डिवाइसेस फंक्शनल है या नहीं है। उसके बाद आता है ALU का पार्ट। ALU क्या करता है, दैट इज नोन एज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड इट इज यूज्ड फॉर द एनी टाइप्स ऑफ अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस लाइक अर्थमेटिक्स कैलकुलेशंस का मतलब हो गया कि चाहे वो एड्रेस का कैलकुलेशन हो, यानी एड्रेस कैलकुलेशन का मतलब जैसे आपने एक कोई फाइल बनाई है तो उसका 10 MB का स्पेस लिया है, दूसरी फाइल बनाने जा रहे हो उसी ड्राइव के अंदर, तो अगला 10 लेगा, 10 MB का फाइल लेगा। जैसे मान लो ये मेमोरी यूनिट है, हमारा मेमोरी डिवाइस है एंड दैट इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। देखो पहला सेक्टर ये हो गया, हमने यहाँ पर 10 MB तक हमने फाइल ले लिया है, अगले 10 MB का फाइल लेके जा रहे हैं तो क्या होगा, इसका 20 MB हो जाएगा एंडिंग टाइम। एंडिंग टाइम तो 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा और स्टार्टिंग टाइम क्या रहेगा, इसका 10 रहेगा, यानी 10 MB टू 20 MB। एंड तो ये कैलकुलेशन भी हमारा कौन करता है, अर्थमेटिकल। yes I am doing that one. So if you have fill your 10 MB space, after that if you are again filling the 10 MB, so it will, the second file will start from 10 and it will end at 20 because of 10 MB of spaces. So this types of calculations is made by ALU. ALU is the system. ALU means arithmetic logic unit, and it is used for all types of arithmetical calculations. And then comes up into the CPU, central processing unit. When the CPU and CU and ALU works together to perform all types of computers, the task of the computer system, that is known as तो जब CU and ALU दोनों, when the CU and ALU both works together to complete the system, complete the entire task, that is known as CPU. The next unit is what? Next part is system unit. What is system unit basically? All those things, all those parts of the computer system which is required, that is known as the system unit. System unit means part of the system. And everything which we always use to interact with the system, interact with any devices for the system, we can say that is the system unit. And the first system unit, we can explain the ports and connectors. The ports and connectors are those through which we can interact with the devices. Either it may be serial port or parallel port, it may be USB port. We cannot see all the ports nowadays in the system because so many ports which was previously developed is now not working. But you can understand about the USB port because you all are using USB ports. So you know USB port is used for all the USB devices. Like you can say you can use as a pen drive. Pen drive is one of the most used USB port, and that is the port, means from where we can connect any device into the system, that is called ports and connectors. You can see whenever we are going to work with internet, we use as a LAN, and in LAN you use the ports RJ45, that is also a port which is going to plug in the system, and the system is working with internet. So ports are those devices of the system, which is those unit of the system
which is used to connect other devices with the system. And next comes up the power supply. Power supply is what? Power supply means those which is used to take input as a power supply and gives to the motherboard or system to be active in functionality. It is called पावर सप्लाई. पावर सप्लाई वो डिवाइस है जहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी करंट लगाते हैं और जो सिस्टम को चलाने में यानी मदरबोर्ड तक पहुंचाता है और मदरबोर्ड को प्रोसेस में लाता है. पावर सप्लाई इज दोज डिवाइस व्हिच टेक्स इनपुट current, electricity current as input and supplies to the motherboard, and motherboard makes functional to all the devices of the computer system. And next part is motherboard. What is motherboard? देखिए एक चीज आप लोगों को मैं क्लियर करता हूं. देखो मैं कोशिश करूंगा कि एक्सप्लेन करूं. I am always trying to explain myself as well as the entire course. But the thing is what? It is not possible to speak in all languages. So I am using Hindi and English only. Right? So I'll explain in Hindi as well as English both at the same time. So motherboard. What is motherboard basically? Motherboard is the main circuit of the backbone होता है. जी. मदरबोर्ड बैकबोन होता है कंप्यूटर का. बैकबोन होता है. गुड. और कुछ बताएं. सर ये मेन सर्किट बोर्ड है जहाँ से पूरे कंप्यूटर में जो भी वर्क हो रहा है उसका यहाँ पे होता है. मेन सारे सर्किट्स यही होते हैं कंप्यूटर के. बिल्कुल करेक्ट. इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं बिकॉज इसके ऊपर मदरबोर्ड के ऊपर सभी पार्ट के नेम लिखे होते हैं, इसलिए इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं. इसी पे आपको विशाल इस इंटीग्रेटेड सर्किट कभी मदरबोर्ड नहीं होता है. इंटीग्रेटेड सर्किट इज ओनली आईसी. यस, नॉर्मल भाषा में आप कह सकते हो कि इंटीग्रेटेड है. दैट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट, नॉट द इंटीग्रेटेड सर्किट. राइट. सो प्लीज बी देखो मदरबोर्ड इज the main board, you can say, where all the devices joined together as per the logical circuits. लॉजिकल सर्किट बोल सकते हो आप लोग इसको. बिल्कुल अंकिता ने बहुत अच्छा बताया कि जहां पर सारी डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं. ठीक है. और यहाँ मदरबोर्ड से ही सारी डिवाइसेस का इंटायर फंक्शनलिटी वर्क में आता है और ये अपना सारे डिवाइसेस फंक्शन में आते हैं. अगर मदरबोर्ड पे कोई भी फंक्शन means if on motherboard any devices are not working properly, it reports to the kernel and kernel reports to the system. So this is the motherboard is one of the main board of the system which is used to. Yes, Akash Sharma. Yes, Akash. Okay. Next topic is von Neumann architecture. That is more important for examination. जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा मैं बताते जाऊंगा और आप लोग उसको लिखते जाएंगे. दूसरा टॉपिक है हमारे पास von Neumann architecture. Von Neumann architecture is what? John Von has developed an architecture of the computer system and that system is known as von Neumann architecture. John Von नाम के साइंटिस्ट ने एक अपना कंप्यूटर का आर्किटेक्चर दिया जिसे हम von Neumann आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं. And according to von Neumann, we have distributed the entire computer system in 3 parts. That is the memory, CPU, and the input-output devices. It means the first part is memory unit, which is required on every machine to perform. And the second part is control unit and arithmetic logic unit mixed together CPU.
which is to bring functional system, to bring the entire system into functional, and respective functionality of the CPU and ALU, we can produce input as well as output also. We can give input and produce output also. So the von Neumann has introduced this architecture and is known as von Neumann architecture. He was scientist as well as the mathematician. Basically, he was the mathematician, but he's developed this system, and the system comes up in the popular mode and known as von Neumann architecture. जॉन वॉन न्यूमन ने अपना एक आर्किटेक्चर दिया जिसे हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के नाम से जानते हैं, जिसके 3 पार्ट होते हैं बेसिकली: मेमोरी यूनिट, दूसरा कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा इनपुट और आउटपुट। देखिए बच्चे, बार बार कोई बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा है कि हिंदी और इंग्लिश, हिंदी में पढ़ाइए। तो देखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बातें कर रहा हूं, और अगर आप हिंदी ही सिर्फ समझते हैं तो आपको कोशिश करना चाहिए इंग्लिश समझने के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं दोनों में एक्सप्लेन करूं ताकि किसी को परेशानी ना आए, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, आई एक्सप्लेन फर्स्ट टॉपिक विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन इज वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। नाउ come to the classification of computer. What is the classification of computer? Computer can be broadly divided into many types or many classes. As I have already spoke in the beginning of the class, that the computer is divided into many types or many parts, many categories, like based on purpose. पर्पस के बिहाफ पर कंप्यूटर को बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पर्पस के लिए मीन्स किस काम के लिए यूज करते हैं, किस पर्पस से, परफॉर्मेंस के बिहाफ पे, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन मेनी मोर थिंग्स। सो बेस्ड ऑन पर्पस एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। बेस्ड ऑन पर्पस मीन्स पर्पस के बिहाफ पे हम करते हैं। जैसे मान लो मेडिकल साइंस में जो यूज होते हैं, एनालॉग सिस्टम यूज होते हैं। इन मेडिकल साइंस वी यूज analog system, whereas in our real life mode we use digital system. तो मेडिकल लाइन में हम एनालॉग सिस्टम भी यूज करते हैं, डिजिटल सिस्टम भी यूज करते हैं, लेकिन हम जनरल लाइफ में जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो यूज करते हैं नॉर्मल हम डिजिटल सिस्टम। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन स्पीड के बिहाफ पर भी हम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन स्पीड वी हैव आल्सो क्लासिफाइड द कंप्यूटर सिस्टम। Based on performance, based on purpose, based on speed. Now, the actual parts are microcomputer, mini computer, mainframe computer, and supercomputer. Basically, we will study about microcomputers, mini computer, medium-sized computer, large-sized computer, mainframe computer, and supercomputer. मैं ये टॉपिक्स मैं सारा आप लोगों को रीड करने के लिए देता हूं। रीड करके आप लोग मेरे से पूछेंगे जो भी टॉपिक, जो भी लगेगा आप लोगों को पूछने लायक, बिकॉज देयर इज नथिंग टू टीच। इट इज बेस्ड ऑन योर स्टडी, बेस्ड ऑन योर टाइम स्पेंडेड ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक। सो सर एक क्वेश्चन है सर। जी पूछिए सर। आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो बता दोगे सर आप? जैसे जो क्वेश्चन आपको लगता है ये आ सकता है, तरह से। देखो विशाल, ये क्वेश्चन पूछने लायक था नहीं, आप पूछना चाहते हो पूछ लिया, अलग बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जैसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट लगेगा मैं बताते जाऊंगा, बोला था ना मैंने? यस सर, यस सर। तो फिर आपको पूछने की जरूरत क्या है? सर मुझे पता नहीं था, आपने ये बताया भी है। ये मैंने अभी बोला था, जस्ट 2 से 3 मिनट पहले। और विशाल अभी हेलो, यस हेलो जी सर। बोलिए। मेरे एरिया में इंटरनेट रिलेटेड इशू है सर, इसलिए क्लास बीच में कट रही है। क्या क्लास देखो, तो इसके लिए बच्चे मैं तो इंटरनेट के विषय में कुछ नहीं कर सकता ना बच्चे। हाँ सर, तो सर क्या क्लास हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप लोग रिकॉर्ड कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा था सर। ठीक है, थैंक यू सर। देखो कंप्यूटर कैन बी बेस्ड ऑन क्लास। सर वेट अ मिनट, एक्चुअली एक Yes, क्वेरी ma'am. था
जी सर सुपर कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स में क्या क्या डिफरेंस होगा? लाइक वो इतना लाइक कुछ तो होगा ना, लाइक उसकी वर्किंग प्रिंसिपल्स थोड़ा बताएंगे क्या आप? हाँ, फिजिकल कंप्यूटर के डिवाइसेस में बहुत सारे सॉरी सुपर कंप्यूटर की बात कर रहे हैं ना आप? सुपर कंप्यूटर के डिवाइसेस में बहुत सारी डिवाइसेस एक्स्ट्रा लगती हैं जो नॉर्मल कंप्यूटर से अलग लगती हैं। सुपर कंप्यूटर, सबसे पहले आप सुपर कंप्यूटर को समझना पड़ेगा सुपर कंप्यूटर है क्या और किस लिए यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द सुपर कंप्यूटर, व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड एंड व्हाट इज इट। Super computer is not used for normal basic calculations or normal uses. It is used on weather forecasting and scientific research. You can say only for weather forecasting, you can say for every type of scientific research and future forecasting too. So there are so many devices which is needed in supercomputer to perform on it. Mayank? Yes, sir. Sir, can you जी. please just specify like some of the components and parts of the supercomputers, like which makes it extra powerful? Right now, I'll not explain this one, but I'll explain in next class. Okay? Okay, sure. Because that is a different part, and I have not remember all those things. That's why only. Okay, sure. We can, yeah, I'll ask you tomorrow. Yeah, of course. I must explain. So classification of technology. Computer can be divided into classification of technology also. And I have already spoke about the analog computer. Analog computer, मैं पहले ही बता चुका हूँ एनालॉग कंप्यूटर के विषय में, जो टेक्नोलॉजी के बिहाफ पे कंप्यूटर डिवाइड होता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? विच हैज फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी देता है, फ्रीक्वेंसी के बिहाफ पे हम रीड करते हैं। यू कैन सी ईसीजी रिपोर्ट ऑफ अ पेशेंट, किसी पेशेंट का ईसीजी रिपोर्ट देख सकते हो, या हार्ट बीट पल्स रेट जो मापने के लिए आपका हॉस्पिटल्स में यूज होता है, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का यूज बेसिकली हॉस्पिटल्स में की जाती है, जहां पर हमें सिग्नल और वेवलेंथ मापने होते हैं। नेक्स्ट, डिजिटल कंप्यूटर, यू हैव स्टडी ऑन, आप लोग खुद स्टडी करेंगे डिजिटल कंप्यूटर विच वी आर यूजिंग। Hybrid computer are those computer which is jointly together, means if we have connected analog computer and digital computer together to comes up a new computer, that is known as hybrid computer. तो हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जहां पर एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं। Next point है integrated circuit. We have already studied about the integrated circuit. Integrated circuit is a system unit, means you can say that is the unit of a system, means that is the device of the computer motherboard, which is posted into the motherboard to for functional working. इसको आप लोग रीड करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज व्हाट? अब ये टॉपिक थोड़ा सा है हटके, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है क्या? तो दैट इज द सर्किट, दैट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट which works on electronic media, passes the connection and frequencies to one device to another device to work all together. देखो मदरबोर्ड पे बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं, एंड इसको मदरबोर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर एक डिवाइस को एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू, एक पाथ के थ्रू एक दूसरे को दिया जाता है, जिसको जिस चीज की जरूरत होती है वो कंबाइन करके एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर एंड produce the entire output. So electronic circuit is nothing but it is an advanced circuit which is made from different electronical components, and all component it is for the combinational work of all the components of the system, like diodes and all. We have already discussed this one. Next point is, देखो, ट्रांजिस्टर वर्सेस वैक्यूम ट्यूब, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। Whenever sometimes the IGNOU asks question about the differences between two things, and that is transistor versus vacuum tube. तो वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर के विषय में भी आप लोग एक बार रीड करेंगे, एक्सप्लेन हमने पहले किया है, फिर डाउट होगी तो कल की क्लास में देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम, नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एनीबॉडी एल्स? कोई बताएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में?
This is a system used to operate the computer, what the application and what the software had to work in this. गुड बच्चे, गुड सर ऑपरेटिंग सिस्टम एक लिंक है यूजर और सिस्टम के बीच में। सपोज हम लोग को कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती और कंप्यूटर को हमारी नहीं आती, तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे को गुड 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 बच्चे, आप दोनों लोगों ने बहुत अच्छा और बताया। सर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइक विंडो और उसके बाद मैक ओएस होता है, लिनक्स होता है, बंतु होता है, ये सारे अपने जी देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो किसी ने मुझे म्यूट कर दिया था, प्लीज आप समझा दो कि म्यूट ना करें, इम्पोर्टेंट काम होगा तभी बात करता हूँ ना आप लोग। हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मैं जब बोलूंगा तो समझ लो कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर समझते हैं, व्हाट इज सॉफ्टवेयर बेसिकली। तो मैं एक्सप्लेन करता हूं, कोई बात नहीं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? यस, असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन ओनली, दैट विल बी बेटर। क्वेश्चन और शुरू में रखो और लास्ट के 10 मिनट में रखो, बीच में मत रखा करो बच्चे लोग। सॉफ्टवेयर इज व्हाट? सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स का एक ऐसा कलेक्शन which can complete our task, which are complete the entire project or task. Software is the collection of जो इसे क्या कहते हैं, RFCM कहते हैं, इसे तुम चाहते हो क्लासिफिकेशन ऑफ कंसेप्ट। जो पर्सनल बातें कर रहा है अपना माइक म्यूट कर लो बच्चे लोग। जिसके घर में देखो सब घर में बैठे हुए हैं तो सबके घर में कुछ ना कुछ बातें होती है, तो म्यूट कर लो, जैसे ही बात करनी हो मेरे से अनम्यूट कर लेना। तो सॉफ्टवेयर होता क्या है? सॉफ्टवेयर इज the collection of huge collection of programs or collection of programs where each program has their specific task, and software all together complete a huge task. And based on software we can divide the software into two parts, that is the system software and second one is application software. सॉफ्टवेयर बेसिकली हमने क्या कहा कि सॉफ्टवेयर बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वी हैव डिवाइडेड सॉफ्टवेयर इनटू टू पार्ट, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। System software are those which provides the platform to the system, platform to the computer system to run all types of application software. Means सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ये परमिशन देता है कि कोई भी, और प्लेटफॉर्म देता है जिसपे हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रख सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। Whereas the application software are those software which provides user to work on it. जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हम यूजर को, कंप्यूटर यूजर को परमिशन देता है कि कोई भी आप यहां पर आइए और अपना काम कीजिए। मतलब सिंपल दो पार्ट है। कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम हैज डिवाइडेड इनटू टू बेसिक पार्ट्स, that is known as what? Application software and system software. System software are those which, one second, which provides us platform। माने सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो प्लेटफॉर्म देता है कि जहां पर कोई भी हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड डालते हैं, एमएस ऑफिस डालते हैं, टैली डालते हैं, कोई एडोबी के सॉफ्टवेयर डालते हैं, आप विजुअल स्टूडियो डालते हैं, आप जावा डालते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर डालने का जो परमिशन देता है, प्लेटफॉर्म देता है, दैट सिस्टम इज नोन एज सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर का मैंने नाम लिया, व्हाटएवर सॉफ्टवेयर आई हैव स्पोकन to install in the computer system, that is known as application software, and because that software can be used for working purposes. तो
जो सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑल द सिस्टम सॉफ्टवेयर कैन बी नोन एज maximum, not all, the maximum software system software is known as the operating system. So we can say operating system is a system software which provides platform where we can run all types of application software so that the user can install the application software and can work on it. अब हम डायरेक्ट आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जहां पर हम कोई भी एप्लीकेशन जो हमें प्लेटफॉर्म देता है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं और उसमें हम काम कर सकते हैं. क्लियर हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में? एनी डाउट अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम? नो सर. ओके. As per your all request, I am just explaining in Hindi and English both so that nobody can get interrupted. But request you all to understand English. That will be better because that is the international language. And this one is very bad part कि आप लोग क्लास खत्म होने के समय पे आ ही रहे हैं. कोशिश करें आप लोग कि 8, 10, 15 तक सारे लोग आ जाएं ताकि क्लास स्मूथ करें. और हम चाहते हैं कि ये जितने भी ब्लॉक्स हैं हम अपने विद इन टाइम फ्रेम में खत्म कर लें हम लोग. राइट बच्चे लोग? प्लीज कम ऑन टाइम सो दैट वी कैन स्टार्ट एंड एंड ईच इंटायर टॉपिक ऑफ द सिस्टम. यस सर. So now comes up in the I'm explaining about the operating system. Operating system is a system software which is used to provide platform so where we can run all types of operating system, all type of application software. Furthermore, we can learn about many operating system like जैसे विशाल ने पहले एक्सप्लेन करी थी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वाज दैट कि विंडोज 8, 9, 10, 11 जो भी करो, विंडोज 8, 10, 11, लाइनक्स, उबुंटू, जो भी फेडोरा, आप जो भी कह लो, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है बिकॉज दे प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म. So technically Linux is not an operating system, it's a kernel. It's just the kernel. Which one? I'm saying technically Linux is not a kernel. Linux is not an operating system, it's just the kernel. Ubuntu, Fedora, Arch Linux, these are all operating systems that are built on top of the Linux kernel. Linux, yes. Linux is, you can say that is not an operating system, but technicalities you cannot say clearly because without any, those software, I have already explained, those software which do not require any system software to run, that can be an operating system. So Linux can be, but not 100% that is the right answer, right? It's clear now? Yes sir. Sir. Yes. सर डायरेक्ट कर दीजिएगा यहाँ पर भी है हम टॉपिक में. क्या? डायरेक्ट जैसे पेंसिल की तरह. आपकी बात मैं समझ नहीं पाया दीपेश. सर अंडरलाइन कर दीजिएगा वर्ड को जिस जहाँ पर भी हो. हाँ देखिए आप लोगों को मैं इस क्लास को बहुत इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो जस्ट एक बार स्टडी करते जाइए. अंडरलाइन तो मैं कर दूंगा लेकिन अंडरलाइन से फायदा नहीं होगा. जब आप पढ़ करके अंडरलाइन करोगे दैट विल बी बेटर फॉर योरसेल्फ. तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप लोग आज पढ़ जाइएगा. बस कल की क्लास में उतना पढ़ करके आइए. देखिए ना आप लोगों को 80% नंबर आएगा. जितना मैं आज पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं. उससे ज्यादा एक चैप्टर पढ़ लेते हो तो बड़ी अच्छी बात है. यस सर. ठीक है. ओके. Just current application of computer system. Current applications of computer system. This is very easy questions for each and everyone. Hello. Priyanshu? Yes, sir. Priyanshu. Yes, sir. Sir, I have a doubt. Sir, what is kernel? Okay.
what is kernel? See, those basically those things which is works between hardware system and operating system is known as kernel. If you are asking about the definition, it means, see, I am just creating a, this is what, this is hardware system. This is the system, this is the OS. See, this is the OS. So this is the kernel. You can see, you can study in operating systems. There is a subject in operating system. We can see this one, this picture only. So in between hardware and the operating system, there is a system works that is known as kernel. It is used to bind and interact all the hardware devices with respective DLL of the operating system. Operating system has many DLL, data link libraries, and that library can be works together to complete with the help of kernel. Clear, Priyanshu? Yes, sir. Kernel क्या है? Thank you, sir. Sir, from what I Kernel understand, hardware DLLs are a also- concept that are only used in Windows. Yes. That's why I'm saying Windows. Hello. DLL. Sir, I was saying, from what I understand, DLLs, dynamic link libraries, are only used as a concept in Windows. There's no such concept in Linux, from what I understand, and in Mac OS X either. Yeah, of course. I am just explaining about the Windows Please let me know because if I'm- we are going through the Windows only right now, right? We are going through the Windows. That's why I am saying DLL. Clear now? Priyanshu, you got it? All right. Priyanshu, you got it? Yes, sir. I got it, sir. Thank you, sir. Okay. So the application of computer system is what? What is the current application of computer system? So you can see from everywhere we are surrounded by the applications of the computer system. From our home to our office, because we have only two paths, home and office. Home to office, in between home to office, wherever we goes, means in home we uses computer system, in banking system we uses computer system, in education system we uses computer system, in healthcare system we uses computer system. Means in all the areas we uses computer system. Wherever area is, whatever every area is, we are using computer system. आप लोग देख सकते हैं सारे एरियाज में हम कंप्यूटर सिस्टम, विदाउट कंप्यूटर सिस्टम our life is not complete nowadays. Our life is full of a struggle without the computer system, because if you are working in our home, there are so many things which is dependent on the computer system. Our businesses are dependent on the computer system. Our education system also dependent on the computer system. Our healthcare system is dependent on the computer system. So everything is dependent on the computer system, but the main part is what? Banking. You know, banking is not possible without computer. Traffic light signal, that is also not possible. Traffic light signal, तो अब कहाँ कौन सी बत्ती जलानी है? हम एक बंदे को नहीं बिठा सकते हैं हर ट्रैफिक लाइट पे कि एक बंदा बैठे लाल जलाए, पीला जलाए, काला जलाए, जो भी है, लाल, पीला और हरा, सॉरी. तो that is also sports. In a sports we are also using. In a school and colleges we are using computer. In learning and instructions we are using computer. In educational research you are using computer. Entertainment we are using computer. Agriculture you are using computer. Means for each and every areas we are healthcare and management and hospital, you are using computer system. So in all areas related to human beings can be used computer system, and being used computer system. हर एक area में computer system use हो रहा है. No areas are there without computer system in this world right now.
नाउ द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ये तो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन पेपर में नहीं आएगा। एप्लीकेशन देखिए, अभी whatever topic we have studied today, von Neumann architecture, first question von Neumann architecture, second computer generation of the computer system, third computer is the application of the computer system, third question. 3 questions are most important in the for the examination. आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन सिस्टम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड कंप्यूटर क्वेश्चन वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, थर्ड कंप्यूटर आपका एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ द सिस्टम। इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन कोई बनता है तो ये 3 क्वेश्चन बनता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। जस्ट रीड इट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्जामिनेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की लिमिटेशन क्या है? तो हर चीज की लिमिटेशन होती है, तो कंप्यूटर की भी लिमिटेशन है। कंप्यूटर अपने हिसाब से नहीं सोच सकता। जो हम whatever we have programmed into computer system that works on that only, that can work on that. It has no intelligence, no self-care, no emotion. That is a emotionless. Computer cannot understand your emotions. Computer cannot think its own. Computer cannot care itself, and that is the limitation of the computer system. Yes, Rohit, you wanted to ask something from long time. Rohit. Okay. So almost we have done our first topic, first unit of first block. Now I'm going to second unit. Sir, I have Second unit of first block. Yes, बच्चे बताइए। Sir, something blueprint or weightage can we have? I didn't understand. ये एग्जाम में आएगा ऐसा कुछ। अच्छा, आप प्रोग्राम गाइड डाउनलोड कर रीड की ब्लूप्रिंट नहीं आता। देखिए, 70 पेजेस की पूरी रीड। आपको मैं बताऊंगा, आप वेट कीजिए किस ब्लॉक से कितने मार्क्स आएंगे। ब्लॉक्स बताऊंगा, चैप्टर नहीं बताऊंगा, यूनिट नहीं। थैंक यू सर, ब्लॉक भी बहुत। आपको ब्लॉक भी बताऊंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे आज मैंने बोला फर्स्ट टॉपिक से आपका फर्स्ट यूनिट से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया। यस सर। 3 टॉपिक आप लोग याद रखेंगे। इसी तरह से हर यूनिट के बाद में मैं आपको बता दूंगा कि इसमें से क्या-क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं है कि उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या? हाँ जी, हेलो। हाँ जी बोलिए सर। तो बोलने भाई जी। विवेक, प्लीज रिपीट मेन टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी वॉइस मैं समझ ही नहीं पाया। सर दोहरा दीजिए, कौन कौन टॉपिक बोले थे मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट। पहला मैंने बोला था कंप्यूटर जनरेशन सिस्टम, दूसरा मैंने बोला था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, और तीसरा बोला था एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। फर्स्ट यूनिट से 3 पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बनाया था। सर जो असाइनमेंट हमने 31 अक्टूबर तक सर लास्ट डेट था, पहले हमने वो सबमिट कर दिया है, तो फिर हमें दोबारा करना पड़ेगा सर? नहीं बच्चे, जो एक बार सबमिट हो गया दोबारा सबमिट करने की जरूरत नहीं है। और आपने कहाँ सबमिट करा है? सर LMS के पोर्टल पे लॉगिन करा था यूजर नेम से और पासवर्ड से। गुड बच्चे, गुड। वही करना है, कहीं दूसरे जगह करोगे तो आपका मार्क्स अपडेट नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनिंग ऑफ अ कंप्यूटर। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया था, पर उसमें मैंने आईडी कार्ड लगाना भूल गया सर एक असाइनमेंट में। आपने इनरोलमेंट नंबर नेम लिख रखा है?
हाँ सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन आगे से मत भूलना। ठीक है सर। Sir, जी, सार्थक कुछ पूछ रहे हैं। sir, I've already submitted all my assignments, but yes, I was saying I've already submitted all my assignments, but I forgot to put in my enrollment number and name. I just put in the course code and course title, and forgot about everything, and I didn't put my name and enrollment number in FEG02 and from what I remember, yeah, ECO01. You have given your enrollment So, number and will name my of marks be first page evaluated? of your 1 minute, No, Sarthak. no, Have you given your No, sir. enrollment number and name on the first page of assignment or not? no, No, okay. And you have submitted through your login ID and password, right? yes, yes. Then no issue, but don't forget next time, okay? Sir? Yes, Yes, please. I put in my enrollment number in all the other exams, in all the other assignments. Okay, thanks. No issue, no issue. Thank you. No issue. Sir? Sir, I had a question regarding that ID download. When I'm trying to download the ID, it's showing some server error on my computer. So how I'm gonna download that ID? Sanjeev Mandal. Yes, if you are getting such Yes, sir. type of issues, you can directly visit to the regional center. They will download and give you. Excuse me, sir. From which regional center you are? Excuse me, sir. I'm from Okay, Kolkata, no sir. issue. Hello. So that is in Vikas Bhavan, right? Yes, yes, sir. Yes, Dipesh. You wanted to ask something? Sir, प्रोग्राम गाइड कैसे डाउनलोड sir, करें सर? like हाउ टू एक एक करके बोलो बच्चे लोग। प्रोग्राम गाइड कैसे डाउनलोड करें सर? आप गूगल में लिखो ना यार, BCA प्रोग्राम गाइड मिल जाएगा अपने आप। यस लियो, आप कुछ पूछना चाहते हैं? लियो sir, आपका नाम है? Leno. लेनो, पूरा नाम लिखा करो बच्चे, क्योंकि ये अटेंडेंस बनता है, ठीक है? Actually, I didn't understand Hindi, sir. Okay, so I'm saying write your full name and join with the full name, because that is the attendance also there. Okay, sir. Sir, And is there any last date to submit the assignment? that is 30th of this month. This month, okay. Yeah. Thank you, sir. And I'm explaining each and everything in Hindi as well as English, so that everybody can understand. Is there any issue in study? No. Like You may ask questions. yeah, okay, sir. What I am seeing here, means most of the people are from Kolkata, and that's a Okay. great part. Thank you. Thank you. So the function is the second unit says functioning of a computer. You know how the computer works. Already we have studied about how the computer works, and the computer works based on von Neumann architecture. We have already explained the things, but as per this unit, we'll explain about the component of digital computer and their role. And what are the basically component of digital computer? We have already explained, means there are some input devices, some output devices, and a storage. Basically, there are three types of components in the computer system. That is input devices, output devices, storage, and processing devices, and processing unit. You can say three units in all in all, we can say there are three units. That is the input units, input output unit, storage units, and processing unit. Under processing unit, you can explain about the CPU. CPU is the processing unit where CU and ALU works together. CU and ALU. CU means control unit and ALU means arithmetic logic unit. And the next one is input and output. Input unit is used to take input like from keyboard, mouse, scanner, barcode reader. All those are the input devices through which we can get into the we can give our inputs in the CPU system, and CPU processed it based on the storage. Whatever instruction you are giving in the system, it will take some spaces. जो भी system में आप
इनपुट देते हो वो क्या होता है, पहले कुछ स्पेस लेता है आपके सिस्टम में और उस स्पेस के अकॉर्डिंग उस स्पेस में उसे होल्ड करके रखता है एंड देन उस पे वर्क परफॉर्म करता है, राइट। तो these are the component of system. Any doubt in the component of system? No, sir. Okay. So this is also important. What are the component of computer system and their role? A storage unit can be divided into many parts. See how the storage comes up. मैं थोड़ा सा टॉपिक से बियॉन्ड चलता हूं. Storage means what? Storage से आप लोग क्या समझते हैं? What is storage basically? Where you can store data. Yes, Nirbal. We can store data, right? Yes, sir. So for store data, we need memory, and smallest unit of the memory is flip-flop. Flip-flop is what? That is the binary cell which stores a single bit of information only. It will either store 0 or 1. मतलब एक बार में सिर्फ एक ही यूनिट स्टोर करेगा. And then after flip-flop, combining many flip-flops, we can consider the registers. And then registers, all the memory systems comes up with the help of registers. All the memory system is being built by the using what? Registers. रजिस्टर्स का यूज करके हम सारे मेमोरी सिस्टम बनाते हैं, लेकिन रजिस्टर्स को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, वेयर फ्लिप फ्लॉप इज द स्मॉलेस्ट यूनिट व्हिच कैन स्टोर अ सिंगल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली. एक बिट का इंफॉर्मेशन रखने वाला फ्लिप फ्लॉप होता है, जिससे बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिलाकर के हम एक रजिस्टर बनाते हैं. वी मिक्स register with the help of many flip flops, and with the help of many registers we can make the entire memory. ठीक है बच्चे लोग? Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. कंपोनेंट ऑफ ए डिजिटल कंप्यूटर. Already explained in last topic, last unit. What are the component of digital computer? The component of digital computer are ALU, CU, and all together makes CPU. There is CD-ROM, there is DVD-ROM, whatever you can say. There is RAM, ROM, keyboard, mouse, monitor, printer. Means whatever the components are there, which can be joined together in the computer system to work for the specific reason, that all together are known as the component of computer system. Component system, component of the computers में हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी डिवाइसेस कंप्यूटर के लिए जरूरत है, जितनी भी चीजों को मिलाकर हम कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं, उस सबको डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं. Means all those devices, all those components which is required to complete the computer is known as computer system. Next topic is computer as a data processing. Yes, computer is a data processing. Why computer is data processing? Computer data processing है, लेकिन कैसे है? This is because it works on the data. Whatever input given by the user, that is known as data. Whatever input is given by the user, that is known as data. And that's why the computer is a data processing unit. हम जो भी input देते हैं, that is also a data for the computer system. They are taking data, और उस डेटा के ऊपर अपना कंप्यूटर वर्क करता है. That's why computer is a data processing system. Next है language of digital computer. What are the language of digital computer? A digital computer, language of digital computer is only binary cell that works on or off. There are two value only for the digital computer, that is 0 and 1. 0 is for off and 1 is for on. So computer system always works on what? Binary number system. Binary numbers. Good बच्चे लोग. और कंप्यूटर सिस्टम हमेशा इस पे चलता है, ऑन और ऑफ पे चलता है. इसको भी आप लोग रीड करेंगे. देखो, जैसा कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, एक डायग्राम बना करके हार्डवेयर डिवाइस होता है,
उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन कर्नल का इसमें नहीं दिया हुआ है क्योंकि अभी उस तरह का लेवल की अभी आपको जरूरत नहीं है। लेवल बाय लेवल पढ़ेंगे हम लोग। देन आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, आउट ऑफ बाउंड जाऊंगा, मैं आउट ऑफ टॉपिक जाऊंगा, कुछ चीजें बताऊंगा जिसको अपने दिमाग में रखना है क्लासेस को कंटिन्यू करने से पहले। ये टॉपिक नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, इसलिए क्योंकि नंबर सिस्टम मैं एक्सप्लेन करूंगा एक ही साथ सारा। अभी हमारे पास 15 मिनट टाइम बचे हुए हैं, तो 15 मिनट में मैं आप लोगों को 2-4 चीजें बता रहा हूं, वो आप लोग समझिए पहले। देखो, स्टडी के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़े। पढ़ने का एक, सिर्फ पढ़ने वाला पढ़ नहीं पाता, बल्कि पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले सिस्टम क्या है? सबसे पहला सिस्टम टाइम टेबल, टाइम पे ज्वाइन करना बच्चे लोग, ठीक है? क्योंकि देखो हम लोग ऑल इंडिया बेसिस पे पढ़ रहे हैं, वी आर फ्रॉम ऑल इंडिया बेसिस। इफ यू विल ज्वाइन थ्रू आउट द इंटायर time given by the IGNOU, that will disturb in the class, right? Every time everyone is coming and going, coming and going, that is not part. Yes, maybe some internet issue from that part, so accept that one. I am requesting you all, please join on or before between 8 to 8:15. That will be the joining time, 8 to 8:15। 8 बजे से 8:15 तक हम लोग ज्वाइनिंग टाइम रखते हैं। क्लियर बच्चे लोग? यस सर। और 8:15 से हम लोग क्लास करें। We start our classes from 8:15 so that we can make our class interactive। And देखिए, बच्चे जो आते हैं आपस में, जैसे आज देखा मैंने, आपस में नहीं हल्ला करना चाहिए। टीचर इज वन पार्ट एंड टीचर नो हाउ टू कंप्लीट द इंटायर कोर्स। मैं आपका पूरा इंटायर कोर्स कंप्लीट करूंगा, मैं जानता हूं कि कैसे पढ़ाऊंगा, तो मैं इंटायर कोर्स को कंप्लीट कर लूंगा। वी हैव स्टडीड ऑलमोस्ट 1.5 टॉप यूनिट टुडे। हमने क्या किया है, आज लगभग 1.5 यूनिट मैंने पढ़ा है, हम लोगों ने, हमने कंप्लीट करा है। 9 classes है। I have already decided the topics, which topics will cover in first class, which topic will be covered in second class. Means there is no issue. Don't be panic for your non-completion of your courses. I'll complete the entire course within the given period of time. Second question. सर, ये एग्जाम प्रैक्टिस करने के लिए हमें मतलब जो जितने भी चैप्टर है उसके आंसर्स कहीं अवेलेबल होगा सर इग्नू के पोर्टल पे? ये कहीं मतलब एक्चुअली क्या आंसर होना चाहिए? हमने तो असाइनमेंट में बहुत लंबा लंबा लिखा है, तो वही मैं सर पूछना था। तो थोड़ा कोई बात नहीं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखो, सबको पूछना चाहिए था ये क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है। कितना बड़ा आंसर लिखना चाहिए, कितना छोटा आंसर लिखना चाहिए, राइट? तो सबसे पहली बात क्या है कि देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट from the history and geography, history and political science group. We are from the computer science. That is the science. So हमें कितने में हम satisfy कर सकते हैं? मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन, कोई वर्ड्स लिमिटेशन इसमें नहीं होती है, हमें पॉइंट टू पॉइंट काम करने हैं। तो मैक्सिमम हमें मान के चलो 100 to 150 वर्ड्स मिनिमम होने चाहिए, और 200-300 वर्ड से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है इसमें। 300 वर्ड से ज्यादा पहले देखो। अब कहीं सर कोई 5 मार्क्स का होता है या ऐसा मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड होता है ना सर? देखो बच्चे, 5 मार्क्स में अगर हम क्वेश्चन दें और कहें कि व्हाट इज डेटा, व्हाट इज डेटा, तो आप क्या लिख सकते हैं कि डेटा क्या है? डेटा इज द रॉ मटेरियल। इसके सिवा डेटा में कुछ नहीं लिख सकते हैं आप। तो डेटा फिर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और ऐसा इंक्रीज नहीं करना है, जो पॉइंट टू पॉइंट है वही लिखना है, भले 5 मार्क्स का। ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये है कि जो चीज पूछ रहा है वही लिखना है, उसके एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन आपको दे देने हैं बस। हेलो, एक्सक्यूज मी सर। जी बोलिए दीपेश।
सर प्रैक्टिकल क्लासेस ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन? देखिए मैं पहले ही बोल दिया था, पहले सुन लीजिए, पहले ही मैंने बोला था कि प्रैक्टिकल क्लासेस का अभी हमारे पास जैसे ही आएगा गाइडलाइन हम प्रैक्टिकल क्लास ऑन करेंगे, लेकिन अब उसके लिए अभी हमारे पास गाइडलाइन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में अगर प्रैक्टिकल क्लास कराएंगे तो हम ही ना प्रैक्टिकल करेंगे, आप लोग तो बैठ के देखोगे ही, राइट। तो जैसे हमारे पास गाइडलाइन आता है हम इन्फॉर्म करेंगे आप लोगों को। अभी थ्योरी क्लासेस का हमने दिया है शेड्यूल, राइट। Yes, sir. ओके सर। और प्रैक्टिकल क्लासेस में देखो इस बार आपको प्रैक्टिकल क्लासेस में ज्यादा कुछ है नहीं, है क्या, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, साथ में इंटरनेट है और कुछ लाइनक्स के बेसिक्स कमांड्स हैं। सर व्हाट अबाउट वाइवा? यस, वाइवा विल कम्स अप विद द एंटायर कोर्स। जो वाइवा होता है उसमें पूरी इंटायर कोर्स से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। सर एग्जाम के बाद होगा कि एग्जाम से पहले होगा वो वाइवा? एक वाइवा होता है आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में। तो सर जो हम लोग का एक्सटर्नल एग्जाम होगा, जो सेंटर में जाके हम लोग एक्चुअली में जो कोर्सेज का फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम देंगे, उससे पहले होगा वाइवा कि उससे बाद होता है? जनरली एग्जाम्स के बाद होता है वाइवा। मे बी आफ्टर एग्जाम। मैं डेट सर लास्ट में है उसकी, प्रैक्टिकल की लास्ट डेट। अभी मैं बोल लेता हूँ, फिर बोलना अगर कुछ रह जाए तो। प्रैक्टिकल एग्जाम जिस दिन होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ ही वाइवा होगा। ओके सर, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम में आप प्रैक्टिकल एग्जाम देंगे और जैसे ही एग्जाम खत्म होगा आपका वाइवा होगा, ठीक है। सर जो प्रैक्टिकल एग्जाम असाइनमेंट के साथ भी वाइवा होता है, लेकिन ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिशन चल रहा है इसलिए वाइवा नहीं हो रहा है अभी फिलहाल। असाइनमेंट सिर्फ असाइनमेंट आप सबमिट करते हो, उसी के बिहाफ पर वाइवा का भी मार्क्स आपको दे दिया जाता है फिलहाल, ठीक है। सर प्रैक्टिकल एग्जाम भी तो ऑनलाइन हो रहा है। हाँ, दोनों मोड में। ऑनलाइन वालों के लिए ऑनलाइन हो जा रहा है, ऑफलाइन वालों के लिए अब ऑफलाइन शुरू हो गया है। So can we change the study center? You can contact your regional center, concerned regional center for this. Sir, can we change mode, like online है तो offline कर सकते हैं? ऑफलाइन तो होता नहीं है, ऑनलाइन ओएल और ओडीएल सिस्टम होता है। Yes, ODL डिस्टेंस मोड कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट सेमेस्टर से। For this question you can contact your regional center. Anything else? Sir, when I try to enroll for my exams, it's showing like the enrollment number is not there. Hello. First of all, you have to fill up the examination form first, right? Yes. And after examination form filling, you will get in the last week of December, last week of November or first week of December as a hall ticket. You can see there the examination. But I can't enroll for my exams. When I try to enroll for my exams, it's showing like the enrollment number is not found or program not found. Okay, so you can contact your regional center for this one. Okay. Sir, Only the point is that regional center is the point where we can contact for each and every points. Yes, Sir. please. Yes. सर जैसे कि देख रहा हूँ कि ये 19 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक कंटिन्यू क्लासेस हैं। सर मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली 19 से 21 तक एक हम लोग का फेस्टिवल चलता है सर। तो ये पूछना था कि कंपलसरी तो है अटेंडेंस, ये तो पता है, लेकिन BCS 12 जो है अभी हम लोग के लिए मैथ्स का ये जो है थोड़ा सा समझना जरूरी था। तो क्या इसका शेड्यूलिंग जो है कुछ दिन पहले नहीं हो सकता है सर ये बच्चे? या बाद में? ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है क्योंकि हम लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। देख रहे हैं आप, 1 तारीख से एग्जाम चालू है, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी सर। 1 दिसंबर से एग्जामिनेशन होना है और बहुत लेट तक एडमिशन हुआ है। हमारे पास किस तरह से हमने क्लासेस चालू करी है अभी इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, अभी एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा अगर मैनेज कर लोगे 2 घंटे ना बच्चे तो बेटर है, ठीक है। सर आपको पास होने लगता के है लिए कि कंप्यूटर जी रोहित? सर पास होने के लिए मिनिमम कितने नंबर चाहिए? 40%। ओके सर, थैंक यू। And sir, will there be any MCQ questions? क्या? Will there be any MCQ questions? No MCQ question is there.
In online mode, there is some MCQ questions, but offline mode there is no. सर टोटल क्वेश्चंस कितने आते हैं वैसे? टोटल क्वेश्चन 100 नंबर के आते हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 4 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन कंपल्सरी होता है जो 30 नंबर के होता है, ठीक है, जिसको करना ही 25 और 30 या 20 नंबर के दिए जाते हैं, जिसको करना ही होता है। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करना है। सर बीसीए ओरल के तो सर डेट शीट 14 दिसंबर से है ना सर पेपर? तो आपका है ना, लेकिन पूरे इंटायर इग्नू का 1 दिसंबर से है ना बच्चे। ओके सर, यस सर। देखो हमेशा एग्जामिनेशन होता है 1 दिसंबर से और 1 जून से। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, 1 जून से स्टार्ट होता है और 1 दिसंबर से स्टार्ट होता है। तो आप लोग हमेशा प्रिपेयर रहो। जैसे एडमिशन आप लोग ले लो ना, एडमिशन लेने के बाद आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है बच्चे। सर अब की बार क्लासें बहुत लेट चालू हुई है जी, क्लासें बहुत लेट चालू हुई है सर। अब की हाँ बार बिल्कुल क्लास लेट चालू हुई है, नो डाउट, आप सही कह रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल तो हम यही कर सकते हैं, जो चल रही है उसको क्लास को कंटिन्यू करे ले, ठीक है। बनाना कंपल्सरी है? क्या बनाना कंपल्सरी है? एबीसी एग्जाम मैं समझा नहीं समझा। एक ही है वो एबीसी, मतलब एबीसी का नंबर अपने को चाहिए होता है फॉर्म भरने के लिए, तो सर एबीसी अकाउंट बनाना कंपल्सरी है? देखो असाइनमेंट बनाना जरूरी है, असाइनमेंट बना करके सबमिट करोगे। देखो बार बार कई लोग बोलोगे तो मैं कैसे समझूंगा, नहीं समझ में आ रहा है मेरा। सर हाँ सर वो एबीसी आईडी के लिए पूछ रहे हैं। एबीसी आईडी क्या होता है भाई? सर जो स्टूडेंट पोर्टल पे होता है कि एबीसी अकाउंट बनाना है नहीं बनाना, अच्छा, वो कंपल्सरी है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बना लोगे तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो भी कोई बात। बना लेना चाहिए, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स ही होता है, कोलैबोरेशन रहता है तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहते हैं, तो अच्छी बात है। ग्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलती है उससे। स्टूडेंट क्रेडिट्स अकाउंट्स के बारे में उसमें डिटेल्स फिल होती है। आप लोगों को देखो बना लोगे तो उससे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन का फायदा रहेगा, अदरवाइज नहीं बनाते हो तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम कंपलसरी नहीं कर सकते। हाँ एलएमएस पोर्टल पे जाना, वहां से पढ़ाई करना, ये जरूरी है। सर जैसे कि अभी आपने बताया कि जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं उनका जो भी मॉड्यूल है वो सारा सॉफ्ट कॉपी में होगा। तो सर हमने तो ऑनलाइन मोड में ले लिया, हमारे पास एलएमएस के थ्रू सॉफ्ट कॉपी भी आ चुकी है। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं, क्या सर कोई तरीका है जिससे सर हम हार्ड कॉपी इग्नू का परचेज कर सके? कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं बस अभी ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ, क्लास खत्म कर रहा हूँ 10 बजे, फिर निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, ठीक है। हाँ पंकज आपकी बातें मैं प्रियांशु सॉरी। नो प्रॉब्लम सर। सर मैं ये कह रहा था कि जैसे कि हम लोगों ने ऑनलाइन में जो एडमिशन लिया है तो सर हमें एलएमएस और ई ज्ञान कोर्स के थ्रू सर हमें मॉड्यूल के पीडीएफ मिल गई है। तो सर क्या कोई तरीका है जिससे सर हम इग्नू का हार्ड कॉपी परचेज कर सके? बिल्कुल। कैसे सर थोड़ा बताइए। डायरेक्ट आप एमपीडीडी में कांटेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिवीजन में भी कर सकते हैं, पेमेंट करके आप ले सकते हैं बुक, और अपने कंसर्न आरसी में जाके बात कर सकते हैं, वो लोग उनके पास भी कुछ होते हैं वो भी दे सकते हैं आप। सर हम लोग कल आरसी गए थे सर। सर वहाँ पे ऐसा जाने पर हमें ऐसा फील हुआ कि हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में लेकर के गुनाह कर दिया है, ऐसा हमारे साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। सर ये बात बिल्कुल सही है, हम भी आरसी में गए थे, हमने बोला कि कोई कंसल्ट ही नहीं है, डायरेक्ट दिल्ली से आप लोग बात करो, अपने यहाँ के टाइम वेस्ट किया, कोई अच्छे से जवाब ही नहीं दे रहा था सर। आप लोग कोलकाता ऑफिस से है ना? नो सर, हम सर आरसी रांची से है सर। सर हम अहमदाबाद से है, हम लोग पूरे 10 जन हैं और 10 को इतनी दूर जाना पड़ा और कोई ढंग का रिस्पॉन्स नहीं मिला। सर मेरे साथ भी सर उन लोगों का ऐसा रिप्लाई होता है जिससे उन लोगों को ऑनलाइन के बारे में कुछ नहीं पता है, उन लोगों को बस यही पता कि इग्नू यानी कि ओडीएल ओपन डिस्टेंस लर्निंग ऑनलाइन उन लोगों के नजर में दूर दूर तक एग्जिस्ट नहीं करता है। एंड सर जो प्रोग्राम गाइड में 20 से ऊपर नंबर्स है, हेलो आर यू हाँ गेटिंग माय बोलिए। वॉइस?
20 ऊपर नंबर सर 20 नंबर को 20 बार ट्राई कर लिया, किसी ने रिसीव ही नहीं। ओके, गुड मॉर्निंग सर, जान बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर मेरा कंसर्न ये है कि हमें मतलब लास्ट टाइम मेल आया था कि वो हमने RC1 में एडमिशन लिया था और हम क्लासेस असाइनमेंट भी सबमिट कर दिया। मेल रिसीव हुआ कि आपको RC3 में मूव कर दिया गया। कोई बात नहीं, आधे अटेंडेंस उधर लगे फिर इधर लगे। दो क्लास चल रहे तो हैं। बताओ RC1 से RC3 में आया तो बुरा लग रहा है आपको? नहीं मेरा बुरा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले सर लेकिन इस वक्त ये है कि सर दो क्लास एक साथ चल रही है और असाइनमेंट जो होगा मैंने LMS पोर्टल पे सबमिट कर दिया। क्या RC3 के लिए कोई अलग सबमिट करने का? देखो सबसे बढ़िया बात है कि पूरे ऑल इंडिया के सारे RC का क्लास एक साथ हो रहा है, ठीक है जी। पहला पॉइंट। Sir, how will we Yes. know the topics for assignment? How Will we know the topics for assignment? एक बार just go on IGNOU sites, IGNOU website, just go on downloads. You can see assignment over here. Go in bachelor's program. See BCA is there. Click on BCA. You can download assignment from here. Okay. Okay, sir. Thank you. देखिए दूसरा ये कौन है? हमजा, क्या नाम है आपका? आपने कहा कि 2 क्लास साथ चल रही है। यस सर। सर 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहा हूँ मैं, 5 से 7 मिनट में। हाँ 5 से 7 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ ये 2 क्लास एक साथ चल रही है। कौन सी क्लास एक साथ चल रही है बच्चे? सर RC Delhi 1 की जो चल रही थी हमारी शुरू से OL प्रोग्राम में, वो वाली चल रही है और अभी ये वाला RC जब से हमें RC Delhi 3 में शिफ्ट किया है क्लासेस के लिए काउंसलिंग के लिए, इधर अलग क्लास चल रही है, वो 9 बजे से या 8 बजे से। देखिए जी हमारा तो ये है कि हमने शेड्यूल अलग दिया है क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस पे नोडल सेंटर का हो रहा था, तो हमने शेड्यूल दिया है। आपको जो ज्वाइन करना है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर उधर तो पढ़ाई चल रही है, फिर वो अटेंडेंस और पता नहीं क्या तो सेम सब्जेक्ट तो इधर भी हो रहा है, सेम सब्जेक्ट उधर ही हो रहा है ना? इधर का तो मुझे नहीं पता, उधर तो अभी सर उधर भी वही लैब की क्लासेस चल रही है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो थ्योरी क्लास है, आप चाहो जहां अटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और पूरे इंडिया के सारे RC की क्लासेस यहीं पे चल रही है अभी नोडल सेंटर का। अगर चाहो तो RC1 में आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक सर आप किताब के बारे में बता रहे थे सर, थोड़ा सा उसका लिंक बता दीजिए ना ताकि हम उनसे कांटेक्ट कर सके। किसके बारे में? सर किताब के बारे में, हार्ड कॉपी के बारे में। हार्ड कॉपी के लिए आप लोगों को सारे डिटेल्स मैं कल दे दूंगा, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब दे दूंगा आपको, ठीक है, कल की क्लास में। सर अभी कॉपी से आप लोग पढ़ लीजिए। सर हाँ जी, जो असाइनमेंट्स हमने लिखे हैं ना, उसमें से कुछ वेटेज होगा एनुअल एग्जाम के लिए फर्स्ट? बिल्कुल 30%। I mean कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे, 30% तो इंटरनली मार्क्स मिलेंगे वो पता है, बट उसमें से कुछ IMP या कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो हम प्रिपेयर करें तो एग्जाम पेपर में आ सकते हैं। 20% तो मैच कर ही जाता है, ऐसा 20% तो मैच कर जाता है। थैंक यू। ओके सर, बाय बाय सर। ओके बच्चे लोग, कल मिलते हैं क्योंकि मेरी दूसरी क्लास भी है और मुझे सेंटर भी जाना, ऑफिस भी जाना है, राइट? ओके सर, थैंक यू सर। कल मिलते हैं कल 8 बजे और करते हैं आगे, ठीक है। बाय थैंक यू सर। Thank you, sir. See you again, sir.